वायदा वचन की बात करना या उसके आशीषों को ग्रहण करना हमें बहुत तो एक आनंद की बात है। But we need to understand one thing. Bible is divided in two parts. One is Old Covenant, another one is New Covenant. परमेश्वर के वचन दो हिस्से में बंटा गया, वो है एक पुराने नियम जो पुराने वाचा है, जो नया वाचा है। In other words, Old Testament and the New Testament. और हम नया नियम और पुराने नियम करके। So up to Jesus comes, it is explained in the Old Testament. और यीशु मसीह के समय तक की जो है वो पुराने नियम है। After that, Jesus' story starts with the New Testament. और यीशु की जो इतिहास है वो शुरू होता है नया नियम के द्वारा। So that the Old Covenant and the Old Testament having the Old Covenant through Moses. और पुराने नियम जो है मूसा के द्वारा हमें पुराने वाचा लेके आया। The New Covenant through Jesus, there is another covenant, New Covenant. और यीशु के द्वारा हमें एक नए वाचा मिली है। That we all so much of interested to hear the different word. Hey, what is New Covenant? What is Old Covenant? We think Bible is the one. हम बहुत मतलब आश्चर्य मतलब हैरान हो जाते हैं, ये क्या है नया वाचा पुराने ने वाचा करके। हम तो एक ही बाइबल सुना है। In India, you know that there is 100 rupee note and 500 rupee note vanish 2-3 years before, right? और हम कुछ समय के पहले जो 500 रुपए जो है वो सारे जो निकाला गया मतलब इस्तेमाल करने से। Same way, the Old Covenant having that so much of traditions and activities, so many things, it's not there in the Old Covenant, that is already vanished. और जो पुराने नियमों में है रीति रिवाजों से भरा हुआ है वो ऑलरेडी निकल गया, मतलब खत्म हो गया। New Covenant through Jesus starts a different way. It's a new 2000 rupee note, new 500 rupee note, new 100 rupee note, right? The color change, design change, the signature change, everything change, right? और ये जो नया नियम जैसे है यीशु मसीह के द्वारा शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए आज 2500 पुराने जो सारे निकल गया, नए रुपया जो है नए रंग में नई बातों में आ गया, नए साइन के साथ हस्ताक्षर के साथ आ गया। So in the same way, in the Old Covenant also, so many promises was given by God to the Israelite people. और जो उसी तरह है पुराने नियम जो है वो कई वायदों से भरा हुआ है। Promises. कई वायदों से भरा हुआ है। Then here the New Covenant also, through Jesus, so many promises is given, right? और नए नियम में आप देखेंगे तो कई वायदों से भरा हुआ है। Old Covenant days, God asked the people to make circumcise all the after 8 years old. Every male baby to be circumcised, right? और पुराने में देखेंगे तो 8 साल से जो 8 साल के लड़का है उनको खतना करने के लिए बोला गया। And God asked the people to do the bullock and then oxen, whatever, and dove, all the things to be sacrificed to God. और आप देखेंगे बलि चढ़ावे की बात करेंगे तो और बैल और जो बकरा और जो कई चीजों की इसी तरह बलि चढ़ावे के बारे में बात किया गया। But after Jesus comes now, जब nobody's यीशु after Holy आया Spirit comes, after Holy Spirit comes, Jesus comes now, nobody's circumcised, right? और यीशु और पवित्र आत्मा दिया जाने के बाद कोई भी खतना नहीं किया। And there is any church you see that there is a goat is there and dove is there and this pastor is making the cutting like a और butcher house. और आज ही हम देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पास्टर चाकू लेके खड़े तो नहीं है, कहीं बकरा तो नहीं है ये और कबूतर तो नहीं है और कसाई की दुकान की तरह। No, you have never seen anywhere in whole world. That means और the new आज आप covenant is different. और आज हम देखें नया नियम अलग है कि पूरे दुनिया में ऐसा कुछ बातें नहीं जो पुराने नियम की बातें हैं। The life is totally different, right? और आज जीवन अलग ही है पूरा। No pastor is circumcised, right? और आज कोई भी पादरी जो है खतना नहीं करते हैं। Even the central pastor itself not circumcised, right? Central pastor. और Central जो pastor. जो मुख्य पादरी जो हाँ जो मुख्य पादरी जो है वो भी खतना नहीं करते हैं। Even the Pope of Roman Catholic not circumcised, right? और यही हमारे रोमन कैथोलिक पोप जो सबसे ऊंचे पद वाले हैं वो भी खतना नहीं करते हैं। So what I am trying to say, the old covenant, all the things is vanished, like a promises of old covenant also updated in the new covenant. और पुराने नियम की सारी बातों खत्म हो गया और वो जो पुराने नियम की वायदा है वो भी जो नए नियम के वचनों में समा गया।
So we are also living in the new covenant days. We must be concentrate and understand the new covenant promises, right? और हम नया नियम के लोग जो हैं, हम खास तौर पे नया नियमों की जो वायदों को ऊपर हम केंद्रित रहना चाहिए। God's promises like a check. We believe and sign it, give it to the bank. It will become money surely. और अगर हम कोई चेक को साइन करके देंगे तो बैंक वाले जरूर पैसा देता है। It exactly like a 100%। God promises. और वो परमेश्वर की वायदा तरह ही ये चेक जो है। God's promises exactly like a check. We believe and sign it. That promise will be fulfilled in our life. और परमेश्वर की वायदा वचन जो है ये चेक की तरह हम साइन करके अगर हम देंगे तो पैसा मिलेगा, वैसे ही ये भी पूरा होता है। All the God's promises is exactly like a wheel. A very rich father written all his things in the one paper and put it, sign it. All things go to his son and daughter, right? और जो परमेश्वर की वचन जो है, वायदा वचन जो है, जिसे साइन करके दिया जाता है वैसा उसकी वैल्यू होता है। So, as a daughter and son of that rich man, we need to understand what exactly written in that will, right? और वो जो हम जमीन की कागजात में जो लिखा है उसको हम जरूर पढ़ते हैं, बेटे बेटी हम लोग। So what is our burden? We want to explain the new covenant promises deep-rootedly understand. और हम लोग नया नियमों की वचनों को, जो वायदा वचन को हम जड़ तक जाके पहचाने, पढ़े। For example, if you are the person using Nokia 5110 now also, Sony Ericsson 301 now also. जो आज मान लीजिए नोकिया की जो पुराने फोन, छोटा फोन था वो, और सोनी एरिक्सन जो पुराने फोन आज भी अगर यूज करता हो, Exactly like a brick. Sony Ericsson exactly like a brick, right? और सोनी एरिक्सन जो है ईंट जैसे इतने बड़ा होगा। So we may see that. Then 5110 also, I told them, dear sir, the phone is updated, sir. Now so much of smartphone is come, sir. Why you are using all this 5110? Normally we say to the people to get update the things, right? और हम बोलते हैं कि यार ये इसका जमाना चला गया, जो नोकिया के जमाना तो वो चला गया, वो अपडेट हो गया, सारे आज नए नए स्मार्टफोन यूज करते हैं सर। Same way, our meetings give the update about your spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में एक बदलाव, एक जो जैसे अपडेट हुआ वैसे बदलाव होना चाहिए। So this is the thing, the new covenant promise, it is written Romans chapter 6. Romans chapter 6:14. और नया नियम की वाचा जो है रोमियो की 6:14 में लिखा है। Please read it very carefully. This is the will of your father. ये जो है, जो जमीन के कागजात में लिखा हुआ है, वो हमारी पिता की वायदा है। Please understand the check how many zeros are there. That will help your life, right? और हम चेक जो है उसमें कितने जीरो लगा हुआ है उसको ध्यान से देखें। So when we collect the check, we first check that where date is correct. और हम जब चेक कलेक्शन करते हैं और उसी टाइम देखते हैं कि ये तारीख सही है। And check the second thing, the amount, it is zero and point everything is right. उसके बाद राशि को चेक करते हैं सही लिखा नहीं लिखा करके। And then we see that our name is written very correctly. और हमारे नाम सही लिखा है करके हम जरूर If one A is missing, nobody is able to use that check, right? और एक बड़ी चीज मिस किया हुआ है, इसका कोई भी नहीं देख रहा। Then if it is written in Hindi, you may check that there is a combo call writing is there. All the things need to be checked, right? और हिंदी में क्या लिखा है, एक चीज का सही लिखा है, हमको एक करके चेक करते हैं। And then also that below that numbers is correct and also written in words also that to be properly checked, right? और उसके बाद चेक में जो पैसा की जो नंबर में लिखा है वो भी चेक करते हैं, उसके बाद उसके जो नीचे शब्दों से लिखा उसको भी ध्यान देते हैं। And finally we check it is signed by the giver. और उसके बाद देखते हैं कि वो जो देने वाला है वो साइन किया नहीं किया, चेक करते हैं। If the money matter comes, we all so much of concern about to see and check in detail, but spiritual. और एक पैसा की मामला आता ही इतने धीरे ध्यान से हम चेक करते हैं, पर जब आत्मिक बात आते हैं क्या होता है। That is the reason when we study the word of God, we must concentrate and study what is written.
if you are under the grace, sin shall not master over you, right? और जब नया हम वचन को जब पढ़ते हैं, जो नया नियम को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? अनुग्रह के अधीन जो है वो पापों उन पर राज नहीं करेगा। So Romans chapter 6:14. Please read, brother. Romans chapter 6:14. हम जरूर पढ़ें 6:14 जो रोमियो की किताब है। Yeah, it is written, sin need never again your master. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। For now you are no longer tied to the law, where sin enclaves you, but you are free under the God's favor and mercy. और क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। See the new covenant promise, maybe in your church, 52 Sundays, you never ever heard about this word, sin not master over you. और शायद आप अपने कलीसिया में आज के इन दिनों में इस जो पाप हम पर प्रभुत्व नहीं करे करके वचन सुना ही नहीं होगा। No, brother. Somebody says you are not a tile, you are a head. Somebody says like this in the book of Isaiah. और हम लोग यही सुना है ब्रदर कि आप पूंछ नहीं सर है। And then I heard about one promise. You are like Abraham. Huh? You are a descendant of Abraham. और हमने ये तो सुना है कि तुम अब्राहम जैसे हो। Abraham is a very big man, blessed by God. You also became a very big man and blessed by God. I heard about many times, brother. और बहुत अब्राहम बड़ा व्यक्ति है कि वो पैसे से बहुत आशीष पाया, दुनियादारी आशीष पाया, वैसे कि तुम भी दुनियादारी आशीष से भरा जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। And also I heard about that your name will be very big. और तुम्हारा नाम बड़ा होगा। And also your enemies will be put down in front of you. हाँ. और आपके जो दुश्मन है मतलब नीचे गिराए जाएंगे। உனக்கு முன்பாக ஒருவனும் ஏத்து நிற்பதில்லை. Nobody is able to stand there before you. और तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। Brother, I heard about so many promises, huh? But you are telling is totally different today. और हम कई वायदा वचन को ब्रदर हम सुना है, आप तो अलग चीजें बता रहे हो। See, these are not promises, brother. ये सारे वायदा नहीं है अभी। No. It's all promises. It was given the old covenant days for the outside blessing of the Israelite people. और ये पुराने नियम के इस्राएलियों के लिए वायदा वचन था पुराने नियम के टाइम में। The new covenant will is talking about the inside blessing. और नया नियम में अंदर की जो आशीष है उसकी बात करती है। If you collect the check from America, you get the money through dollars, right? Not rupee, right? और अमेरिका से अगर चेक पाए तो उसके डॉलर से आपको पैसा मिलेगा और हमारे हिंदुस्तान के पैसा में नहीं मिलेगा। Then you change the dollar to the Indian rupee, right? और डॉलर को क्या करते हैं, इंडिया के पैसा में बदलते हैं। Same way, see the new covenant promise, what is written? It is exactly written, we are under the grace, number one. और नया नियम के वायदा वचन क्या है? हम अनुग्रह के अधीन हैं। Be under the grace means, what is the proof? Sin shall not master over you. और नया नियम की वायदा वचन ये है कि अनुग्रह के अधीन, इसका मतलब क्या होता है? पाप हम पर राज नहीं करेगा। That means anger not master over me, right? और इसका मतलब क्या है? गुस्सा जो है मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। And then irritable, that is not master over me, angry. और जो ज्यादा गुस्सा होता है ना, वो मेरे ऊपर राज नहीं कर पाएगा। And somebody says some word, I really offended. Manam punbududal. Offended. और कोई कुछ भी बोल दें तो मुझे चोट लगता है। That offended heart will not overpower you. Why? Because you are under the grace. वो जो चोट लगा हुआ दिल जो है वो आप पर मुझ पर राज नहीं करेगा। Even the need or no need, I was a person telling lies, for example. Pardon me. If I am the person, the character of my character is, if need or no need, I always say the lies. The need, right? If I'm the person a liar, I'm a liar.
जी, For जी। example, ओके, हम झूठ बोलने वाला व्यक्ति हूँ मैं, ऐसे even ऐसे मान लीजिए। even there is no need for any lie, I always speak lies. ओह! राइट, ओके, आके मतलब ज़रूरत के बिना भी झूठ बोलने वाला आदमी है मैं। Lie to the mother, lie to the father, lie to the husband, lie to the wife, lie to the master, even lie to the pastor, right? और मम्मी-पापा से, पत्नी से, बच्चों से और जो स्वामी से और जो पास्टर से, सभी से हम झूठ बोलते हैं। It is intentionally not come, but it's a character, no? It's automatically और come, right? और जानबूझ के झूठ नहीं बोलते हैं, अपने आप आ जाता है, एक ही चरित्र हमारा है। Where are you? कहाँ पे हो? I am standing in Manali, but I am saying like this. I am in Simla. Like, और मैं मनाली में खड़ा हूँ पर बोलता हूँ शिमला के आस-पास हूँ। see, you see that? What are you doing? We are doing something, but we may say, no, 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 I am doing that. See, so many और things comes in our life, right? हम कुछ करते हैं, पूछा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा करके हम ऐसे जो इसी तरह झूठ बहुत सारे हम बोल देते हैं। See, the new covenant promise, the lie, not overpower on you. This is the word, right? और ये नए नियमों की वाचा है कि वायदा वचन है, झूठ आप पर राज नहीं करेगा। So the lust of eyes. आंखों की अभिलाषाएं। See, even I tell you, brother and sister, your dream, bad dreams you have already sin overpower in your life. The lust of आमीन, eyes overpower. आमीन। ये जो आंखों की अभिलाषा है, जो गंदी सपनों जो है, ये सारे हम लोग जीत गए, हम उसके ऊपर राज कर रहे हैं। Check your life, who you are. That is not a problem. Check your life. Last week, what are the dreams occupy in your mind? और ऐसे चेक करें कि पिछले हफ्तों में क्या-क्या झूठ मतलब जो गंदी सपने आए। If you ask your mobile, I don't know what is your brand, that brand will come to one day stand before God and say to you who you are. और आपकी मोबाइल जो है, कौन-सी ब्रांड आप रखा है मुझे नहीं मालूम है, बट एक चीज़ है ये जो है स्वर्ग में आके हमारे विरोध में गवाहियाँ बाँटेगा। I may say like this, Vivo will come, Sony will come, huh? Motorola will come. I tell you, all the brands will come and stay one before in front of the Christians. Yes, these people having the lust of the eyes, I already overcome. Confirm. ओके, और ये जो सारे ब्रांड है, जो सोनी हो या कोई भी ब्रांड हो, ये सारे आपके सामने क्रिश्चियन लोगों के सामने आके गवाही बोलेगा कि ये सारे इसी तरह यूज़ किए लोग करके गवाही बोलेगा। क्या See, वो पापों को जीता है? I tell you the truth today. The word of God मैं सच्चाई says, I tell you the truth. The word of God says, sin, the lust of eyes cannot over prevail in your life. It's not at all master over you. This is a promise of new covenant. और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आँखों की अभिलाषाएँ जो हैं, वो आपके ऊपर मतलब प्रभुत्व मतलब राज नहीं कर पाएगा। मैं सच्चाई को बता रहा हूँ आपको। We need to live a like this. A adultery woman, a harlot lady, just to see our face, and she may say like this person eyes is very pure. Are we able to get this vision from? I tell you, this is a standard in the new covenant. ये विचार करने वाली स्त्री भी हो, आपको देख के, आपकी आँखों को देख के कि बोल सकते हैं, ये आँखें जो है शुद्ध आँखें, पवित्र आँखें हैं करके आपको देख के बोल सकते हैं। One day John Knox was walking on the road, the fourth corner. The one street, there was a harlot lady standing there. Just see that John Knox face and the harlot lady face. The harlot lady so much of crying. Why? Because she have a confessing the sin. See the power of man of God in the new covenant life. तो आप देखेंगे जहाँ नाक्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें एक चौराहे पर वो जा रहे थे, ये एक स्त्री वहाँ पे जो गंदी लेडीज है, जो गलत काम करने वाली लेडीज थे, वो इनकी Harlot आंखों lady. देखकर वो अपने पापों को स्वीकार करके रो कर मतलब अपने पापों को स्वीकार रही थी। You understand, men, brothers, ladies will मेरे भाई understand लोग who you are. और मेरे आत्मिक भाइयों और जो आत्मी है वो लोग जो समझ रहे हैं, स्त्रियों आप समझ रहे हैं क्या? More than that, a harlot lady, adultery business, that ladies understand your I, who you are.
और जो विचार करने वाले स्त्री, ये लोग समझ लेते हैं आप कौन हैं करके। See, John Knox's heart is so much of pure. Just connection with their eyes, that lady confessed their sin and came to the John Knox home and became a God child, take a baptism and go to the church. You know one thing, I'm not telling the story, it's true. और जॉन नॉक्स के दिल इतने आत्मिक बोझ और पवित्रता से भरा हुआ था, उस आदमी को देखते ये स्त्री जो है अपने पापों को स्वीकारा, उनको यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परमेश्वर की बेटी बन गई। See how much this new covenant promise works in the John Knox life. Sin और shall not overpower, right? और ये नया नियम की वाचा जो है जॉन नॉक्स के जीवन में कितने अच्छा काम कर रहा है, पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। Instead of that, somebody is having the car, somebody is having the land, somebody is having the full of money. We may think like the person was blessed by God. We may think like foolishly like a old covenant people, right? और हम लोग कई बार ऐसे मूर्खता भरी सोचों से भर जाते हैं कि जो पैसा से भरा हुआ है, ये गाड़ी, सब कुछ जमीन है, सब है, ये तो प्रभु से आशीषित लोग करके हम समझ लेते हैं। In our mindset, so many prosperity preachers, so many people teaching. Even the 52 Sundays, we may hear about the blessing, blessing, blessing. Our life is so much of dry inside. ये जो आशीषों की प्रचारक जो आजकल हैं और पावन हफ्ते यही हम सुनते आते हैं, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा, आशीष करेगा, पर हमारे दिल में यही इन्हीं चीजों से भरा हुआ है हम लोग। So we are also thinking like this, right? When we seek God, we find the blessing of material things, right? हम परमेश्वर को देखते ही हम दुनिया की जो दुनियादारी आशीष, उन बातों को याद करते हैं। So we are also hearing some stories and witnesses on the church. Somebody standing like this and say like this. और कलीसिया में भी हम ऐसे गवाहियां सुनते हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं प्रभु ने ये दिया, वो दिया करके। I'm seeking God. I had a 2-acre land. Hallelujah. और परमेश्वर को मैं खोजने वाला हूँ, मैं 2 एकड़ जमीन के लिए प्रार्थना के मिल गया, हालेलुया। I see God. I got a good boy for my girl, a good girl for my mother. Hallelujah. और मैं परमेश्वर खोजने वाला हूँ, मेरे बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल गया। Some foolish Christians are there. My son got a good dowry. God gave me a good dowry. Huh? और कुछ ऐसे मूर्खता भरी मसीह लोग है कि मेरे बेटे को अच्छा दहेज मिला करके उसके लिए भी हालेलुया बोलते हैं। I see God. I got a 2-floor home. Hallelujah. और मैं परमेश्वर को ढूंढा और मुझे अच्छा 2 घर मिल गया, हालेलुया। Brother and sister, these all needed. It exactly like according to our talent, according to the work. Definitely we will have something in the world. Confirm. और हमें ये सारे चीजें चाहिए कि नहीं, दहेज नहीं चाहिए ब्रदर। I'm not against the material thing. I'm not against the material thing. Yeah, sorry. I'm not against the material thing. Dowry we don't want. The rest of the things we need. Okay, हम no सारे problem. चीज हमें चाहिए, सारे चीजें चाहिए, परमेश्वर हमें देगा हमारे टैलेंट और काम के हिसाब से। I heard this witness from some churches. They are telling like this. That's the reason I'm against totally a dowry. That is the reason I won't explain it. और चर्च में हम ये बात मैंने सुना, व्यक्तिगत तौर पे मैं सुना कि ये दहेज मिला है करके। I tell you, according to your knowledge, according to your soul power and your talent, you will get money confirm. और आपकी जो ताकत और जो टैलेंट है उसके हिसाब से आप जरूर सब बातें पाएंगे। Based on the talent of Sundar Pichai, he is a believer and he is a CEO of Google. I tell you, according to the study and commitment, he got so many crores of money. Confirm. I am not against work and God will bless you. Confirm. और मैं इस बातों पर पक्का यकीन करता हूं कि टैलेंट के हिसाब से, जैसे हम सुंदर पिचई को ले लीजिए, अच्छे विश्वासी हैं और आज उनकी जो सीईओ बनकर इतने करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। Not lady, is a man. सुंदर पिचई एक आदमी है, CEO of Google. और गूगल के सीईओ है वो। So his every month salary some crore. ये हर बातों में करोड़ों में His कमाते every हैं, month salary is crore. और हर महीने में वो करोड़ों में कमाते हैं। But what I am asking, you are seeking God. Again I tell you, you are seeking God. You got 2-acre land.
और परमेश्वर को मैंने ढूंढा और खोजा और मुझे 2 एकड़ जमीन मिल गया। You told you are seeking God, you find 2-floor home. और परमेश्वर को ढूंढा और मेरे को 2 मंजिला घर मिल गया। I am asking the question directly to you. Are you मैं really seeking God? और हम सच्ची में परमेश्वर को मैं ढूंढ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। No, 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 no. You are seeking 2-floor home. What you seek, you got it. I tell you. और आप परमेश्वर को नहीं ढूंढा, 2 मंजिला इमारत ढूंढे, वो 2 मंजिला इमारत मिल गया। You are seeking 2-acre land. You are not seeking God. और 2 एकड़ जमीन को ढूंढा, परमेश्वर को नहीं ढूंढा आपने। But I tell you, if I am seeking God, I got God, man. I received God. I got God. Please understand my word. और आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए कि मैं परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर मुझे मिल गए। I tell you, if you seek God, you find God, right? और आप परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ही पाएंगे। If you lost 10 rupee, you seek it, and finally, how much you got? The 10 rupee only you got, right? आप जो चीज खोया उसी को ढूंढ रहे हो तो वही मिलेगा, है ना? You lost 10 rupee mean in one bus stand. You are seeking 10 rupee, you find 10 rupee, right? और आप बसटा में खड़े हैं, 10 रुपए गुम हो गया, 10 रुपए आप पा लिया, सही है? Maybe 10 rupee you don't respect. I respect it. Say 2,000 rupee you lost in the bus stand, right? For example. 10 रुपए कितने हैं? अगर 2000 गुम हो गए तो हम जरूर ढूंढते हैं। Yeah, okay. Now you are seeking that 2,000 rupees missing. You are seeking that, right? What do you find? Tell me. और आप 2000 रुपए गुम हो गया, बहुत ध्यान से ढूंढ रही हो, क्या पाएंगे आप बताइए? You find that one old 7-Up bottle. Ha! You are happy, right? और आप 2000 खोज रहे हो, अगर 7-Up की पुरानी बोतल मिल गया, आप खुश हो जाएंगे क्या? And you find that some papers, old paper, napkins, huh? And then tissue paper. और आपको पुराने कागज मिल गया या टिश्यू पेपर मिल गया, इससे खुश हो जाएंगे And क्या? some plastic paper and banana leaf. It is there. You are so happy, right? और पुराने कागज या केले के पत्ते मिल गया, आप उससे खुश हो जाएंगे क्या? No, no, no. Until you find that 2,000 rupee, you are seeking, seeking, seeking. Why? Because you lost 2,000 rupee, right? और आप 2000 को पाने तक जो आप ढूंढते रहेंगे क्योंकि आपने खोया 2000 रुपया को। When we seek God, when we seek 2,000 rupee, we find God, not the banana leaf, not that this worldly material things. I tell you, new covenant asks us to seek God, find God, right? आमीन। और जैसे 2000 को ढूंढते पाते हैं, वैसे हम परमेश्वर को ढूंढ रहे, परमेश्वर को ही पाया, नहीं हम पुराने कागज जैसे दुनिया का आशीषों को नहीं। We forget one thing. We have God, we have everything, right? हम भूल गए, परमेश्वर है, सब है। So new covenant, it's talking about inside blessing. One word we are studying now: sin shall not overpower, right? और हम एक ही चीज नए नियमों से पढ़ रहे हैं, वो है कि पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। Check your life. How is your eye today? How is your eyes today? How is your eyes today? और आप अपने जीवन को ले लीजिए, आपकी आंखें कैसी है? In your eyes, overpowered by the lust of your flesh. I am asking the question: are we living in the new covenant life? और आपकी आंखों को, जो आंखों की अभिलाषा है, वो प्रभुता करता है क्या? हम सच में नए नियम की जीवन जी रहे हैं? Remember the new covenant promise: sin shall not overpower you. और हम नए नियम की वाचा को याद करें कि पाप आपको ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। See, so many Christians are under the slave of lust of their eyes. Surely. और हम काफी लोग, विश्वासी लोग, ये जो पापों के अधीनता में हैं। You know one thing. There was 11 people in the group of Sadhu Sundar Singh's fellowship, in the group of the core group of the ministry. और ये जो साधु सुंदर सिंह जी थे, उनके चारों ओर 11 लोग थे, वो उनके बहुत नजदीक रहने वाले लोग Sadhu थे। Sundar Singh was a person working Tibet and Himachal, and he is a man of God from India.
और वो ये प्रभु के दास थे इंडिया से, वो तिब्बत और हिमाचल की पर्वतों पर वो सेवा करते थे। So one day, all the 11 is co-workers interviewed by one very big paper. They asked the question, what is the greatest thing you find in the life of Sadhu Sundar Singh? इन क्या people asked, right? The interviewer, one interview taken the 11 of co-workers about Sadhu Sundar Singh. जी 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 ओके। एक इंटरव्यू में इन 11 लोगों से पूछा गया, एक बड़े कागज में लिख कर, कि साधु सुंदर सिंह के जीवन में आपने क्या देखा है। The 11 people of co-worker of Sadhu Sundar Singh say one accord, only one word. और ये 11 जो प्रभु के दास जो साधु सुंदर सिंह जी थे, उनके साथ थे, उन्होंने एक कोरस की तरह वो एक साथ एक ही बात बोले। They all say like this, we find his eyes are holy, pure. और हम एक ही चीज उनमें देखा कि उनकी आंखें पवित्र आंखें थी। I am talking about the new covenant promise. Understand? मैं बात कर रहा हूँ नया नियमों की, नए वाचा की वायदा वचन। A very big man of God, working Lord, hard worker, good writer, good preacher. Even then, which is the most important thing? Tell me. और ये साधु सुंदर सिंह एक अच्छे प्रभु के दास थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, मतलब मेहनत करते थे, घूमते फिरते थे, लिखने वाले थे, पर सबसे ऊंचा क्या है? Which is the most important thing in the life of Sadhu Sundar Singh? The new covenant promise. Sin shall not over prevail in his eyes. He had a pure eyes, godly eyes, holy eyes. Amen. आमीन। और साधु सिंह जीवन में अगर देखेंगे, उनकी पवित्र आंखें, ये पाप उनकी आंखों के ऊपर राज नहीं कर पाया। See, this is not my word, no. Where they are concentrating in their life, they are not concentrating the material blessing. They are concentrating inner part, right? और वो हम नए नियमों की बात कर रहे हैं, वो लोग जो बाहरी बातों को नहीं ध्यान दे रहे थे, अंदर की आत्मा की बातों को ध्यान दे रहे थे। They are so much of interest to see the Lord Jesus Christ in their life, what he says, how he live, what he preach, right? और वो बहुत ये ध्यान देते थे, यीशु मसीह जो अंदर के जीवन में काम करे, वो जो प्रचार करे, वो जो बोलते थे, उसी को ध्यान देते थे। They are starting their life to concentrate the new covenant promises to be fulfilled in their life, right? वो लोग बहुत ध्यान देते थे कि नया नियम के वायदा वचन जो है उनके जीवन में पूरा हो। If we are the person, maybe the gang of Israelites camp, what is our contention? What is our thing? We need to be increase that Canaan, right? That is our all force to increase the Canaan. When we were in the Israelites camp, right? और अगर आप कनान में बड़ा बनना चाहते हो, आप इस्राएल लोग हमेशा वो कनान देश में बड़ा बनना चाहते थे, वैसे अगर हम बनना है तो हम इस्राएल के मतलब राज्य में होना चाहिए था। No, each and everybody having that zeal of the promise, we need to increase that Canaan, right? और हाँ, वो लोग इस्राएल हमेशा ये वायदा वचन के ऊपर ध्यान देते थे, हम पूरे कनान को मतलब कब्जा करना है। But now we are in the new covenant, no? We have a different Canaan, right? हम नए वाचा में है ना। What is our master Jesus says? What is expectation? What he asks us to increase in our life, right? हमारे स्वामी, हमारे मालिक जो यीशु मसीह है, वो क्या करते हैं, किस में हमें बढ़ने के लिए कह रहे हैं? So the Paul is written in Ephesians chapter 1. He explained what exact our concentration it is written. Ephesians chapter 1. और एफेसियन किताब में पौलुस एक हमारे ध्यान देने की बात क्या है करके वहां एफेसियन किताब में लिखा है। He starts like this: I praise God Father, Lord, through our Lord Jesus Christ. Verse 3. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। Chapter 1 verse 3. एफेसी 1 का तीसरे वचन में, पहले अध्याय में तीसरे वचन में ये लिखा है। Shall I read, brother? Yeah, please, brother. हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों दी है। It is Tamil is so good, brother. In other language, it is written in Tamil, no?
our, who is our? Jesus. Our in Christ. In Christ, there is something is in Christ, right? In Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் he blessed. உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களாலும் ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார். I don't know other language, it is not at all clear. Tamil is so good. और ये यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, हमारी भाषा में ऐसा लिखा है, उनमें जो यीशु जो उनमें और परमेश्वर की जो आदि में जो मतलब स्वर्ग में जो रखा है, उन सारे आशीषों से हमें आशीष कर दिया है। See, I don't know what is in Hindi, brother. கிறிஸ்துவுக்குள் यीशु ஆசீர்வதித்து मसीह में இருக்கிறார். और It is not past tense. ये मसीह में हमें आशीष कर रखा है। What is the, मतलब तत्काल में बोल रहे हैं। what is the blessing? What is the blessing? It is और heavenly blessing, right? Heavenly और blessing, right? और ये क्या आशीष है? क्या आशीष है? वो आसमानी आशीष है। So we need to be encouraged that we need to be live this life. We need to be enjoy this life, right? और हम इस जीवन में आनंदित रहना है, हम उस आशीषों में बढ़ना है। What is the heavenly blessing? Sin shall not over prevail in our life, right? और वो आसमानी आशीष क्या है? पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। Because the Paul identified what are the blessings he received from heaven, right? और पौलुस इस बातों को ध्यान दे रहे थे, हम क्या स्वर्ग से पाया है। So he understand and he enjoy, then he praise Father. Through Christ you are giving so many things like this. वो ध्यान दे रहे थे, देख रहे थे और इसलिए परमेश्वर को इतने महिमा कर रहे थे। That is the reason we must be so concentrate on the word of Jesus, our Lord, and our forerunner and our teacher, right? और इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे रहे, यीशु मसीह पर ध्यान दे रहे, जो हमसे आगे दौड़ने वाले, जो उदाहरण के रूप में दौड़ने वाले, उन पर ध्यान दे रहे हैं। How the old covenant people listen the voice of Moses, listen the voice of Joshua, listen the voice of that prophets and other people. Same way we need to be listen our Joshua, our Moses, our prophet Jesus, right? और यीशु को देख रहे थे, मूसा को देख रहे थे, उनकी वायदा वचनों को ध्यान दे रहे थे, उसी तरह हमें आशीषित होना है करके इस्राएल के लोग सोचते थे। What he says, the still shall not over provide, right? यहाँ पे क्या लिखा है? पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। So regarding the lust of eyes, I want to say 2 minutes. We'll go to Matthew chapter 5, 6 and 7. It's exactly the words of Jesus. We are talking about lust of eyes only today. और हम जो आंखों के अभिलाषा की बात करेंगे थोड़ा, और जो हम मत्ती सुसमाचार से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। See, I tell you, whoever hearing today, if you are over mastered by the lust of eyes, listen carefully. और जो लोग आंखों के अभिलाषा प्रभुता कर रहे हैं आप पर, तो जरूर ध्यान दें। Who you are, I don't have any problem. I tell you in the name of Jesus, you and me and we all enjoy the new covenant blessings, right? और वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह नए वचन में हैं, इन आशीषों के वचन से हम आनंदित रहेंगे। No partiality in God. परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं। He gave to John Knox, he gave to Sadhu Sundar Singh, he gave to, I met so many people in my life. I need to be enjoy this life, right? जॉन नॉक्स को ये आशीष थी, जो पाप राज नहीं कर रहा था, साधु सुंदर सिंह को मिला है, तो मेरे जीवन में मैंने कई लोगों को देखा है, ये मिला है, तो मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए? So Billy Graham understand God. He spoke 20 minutes about Jesus. 5 lakhs people committed their life. How much pure their heart, right? और बिली ग्राहम को देखते हैं, 5 लाख लोगों को प्रचार करते, वो लोग सुनते हैं, जीवन को यीशु मसीह को दे देते हैं, उनके दिल में कितनी पवित्रता था। See that Matthew chapter 5 verse 27. मत्ती 5 का 26. Olden days you may hear that don't do adultery, right? वो पुराने नियम में आपने सुना है, पुराने दिनों में सुना है, अडल्टरी मत करो, मतलब व्यभिचार मत करो। But I tell you, Jesus says, मैं कहता हूँ, यीशु कह रहे हैं, one who lustful look any woman, he has adultery inside the heart with that lady. Verse 28. 28 पढ़ते हैं। ये लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई
किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे विचार कर चुका है। My dear brothers and sisters, have you ever heard this word in your church meetings? और क्या मेरे प्रिय भाई बहनों अपने कलीसिया में ये बात तो सुना है कभी? Because even the God's people, they are the leaders of people. They also doesn't have the overcoming life. They will not at all touch this type of areas. I tell you the truth. ये अगुवे लोग, बड़े लीडर लोग, ये लोग खुद इन बातों में रहते हैं, वो जीत नहीं पाए इसलिए कह नहीं पाते हैं। Instead of 52 Sundays, 104 times they're talking about tithes. Right? और कभी-कभी एक दो बार इस बातों को कलीसिया में बात कर लेते हैं। And then see, here is the overcome. Jesus is telling, one who have a lustful look, you will already you fall in adultery, right? Lustful look. ये अभिलाषाओं से भरा हुआ एक बार देख के ना आप उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर चुके हैं, यीशु के कहना है ये। I don't know what brand TV you are using. I tell you in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, वो जो टीवी आप जो देख रहे हैं, It will stand one day in the judgment day. It will stand. वो ब्रांड जो टीवी जो है न्याय के दिन वो स्वर्ग में हमारे सामने खड़ा रहेगा। The TV will speak like this. I know this pastor. I know this believer. I know this person. That's all. वो टीवी ब्रांड बात करेगा, वो बोलेगा मैं इस पादरी को जानता हूँ, इस विश्वासी को जानता हूँ, इस एल्डर को मैं जानता हूँ। Why? Because Jesus says the stones will speak. I am using the TV will speak, right? और यीशु ने बोला ये दरवाजे बात करेगा करके, यीशु ने बोला मैं बोल रहा हूँ टीवी बात करेगा करके मैं बोल रहा हूँ। Definitely. You see that the lustful look in TV. Lustful look. ये अभिलाषा भरी देखना जो है ये टीवी में है, टीवी को हम देखते हैं, ऐसे देखते हैं। I don't know which is the heroine in your area. I tell you, if you have a lustful look in your heroine in your area, in the name of Jesus, you had adultery with Aishwarya Roy. That's all. और आपके एरिया की हीरोइन के बारे में मुझे नहीं मालूम है, पर उस जो हीरोइन को आप गंदी नजर से, कुदृष्टि से देखेंगे तो वो जैसे ऐश्वर्या राय है उसके साथ विचार करने की तरह है ये। Nobody says like you, right? Huh? I tell you today. Please understand. I tell you today, if you lustfully look any woman, the word of Jesus is here. It is in the screen or it is in the direct, whatever it may be, in your heart and in the word of Jesus, we fall on adultery, right? और ये इसको कोई नहीं बोलते हैं ना। देखिए मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, और उस स्त्री को आप स्क्रीन में देखो या आमने सामने देखो, उस स्त्री के साथ अगर आप दिल में ऐसे सोचेंगे तो हम विचार कर चुके हैं। Then we are shaking, no? Hey, this much standard, yeah? Hey, do you comment this much standard, yeah? Huh? और आप ज्यादा हिला दिया आपने, इतनी ऊंचे स्तर की बातें। Remember, already Jesus blessed, right? In Christ we are blessed. In Christ we are blessed. और यीशु मसीह में हम आशीषित हैं। And Romans 6:14 said, the lust of eyes will not have overprevail on your life, right? और रोमियो की 6:14 ये कहता है, ये आंखों का अभिलाषा तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। Why? Because you're under the grace, mercy, under the fall of God's love, right? और आप प्रभु की उस झरनों जो अनुग्रह और उनकी दया पर हैं। So before I am going to that love stream, I just explain the next word, then we'll go the love stream. Stream of water, Nirvilchi. ओके, हम उस झरने में जाने के पहले मैं उन कुछ बातों को बताऊंगा। Verse 29 says, if your left eye making some problem, God is telling, remove it and throw it. Please read very carefully 29. और अगर वो बाएं आंखें अगर आपको पापों में गिरने के लिए मजबूर कर रहा है, उसको निकाल के फेंक दो। आप 29 में पढ़ सकते हैं। Because the whole body, not to put it in the hell, no? Without that eye, you will be living, right? और क्योंकि आपको शरीर आग में फेंक दिया जाएगा, आप नरक में जिएंगे, है ना? Read carefully 29, brother, one time. Matthew chapter 5:29.
मत्ती 5:29 में पढ़ रहा हूँ। Hmm. यदि तेरे दाहिनी आंखें तुझे ठोकर खिलाएं Hmm. तो उससे निकाल कर फेंक दें, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी आंखों में से एक नष्ट हो जाए और तेरे सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। It's all related to verse 28, talking about lust of our eyes, right? और ये सारे 28 की बात कर रहा है, जो मतलब आंखों की अभिलाषा की बात है। This is the word of our master, right? ये हमारे स्वामी की शब्द हैं, है ना? This is my Parmeshwar's word, right? और ये मेरे परमेश्वर के शब्दों हैं, है ना? And then verse 30 says like this, your left hand makes stumbling block. You just remove it. So because the whole body not to put in the hell, right? For example, only one hand, you without hand you will be leave, right? Please read verse 30. और यदि तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाएं तो उसको काट कर फेंक दें, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए, क्योंकि हम नरक में जाएंगे, है ना? And we read this word, full church is one eye on one hand, right? और आप इसको पढ़ेंगे तो आप पूरे कलीसिया की हालत क्या होगा? एक आंखें एक हाथ होगा। A pastor doesn't have a hand and one eye, right? Pastor और doesn't अगर have पास्टर भी एक आंखें वाला होगा या एक हाथ वाला होगा? no, the meaning of this word is totally different, I tell you. ये अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। The first thing, overcome, the sin will not prevail. The first thing, what our master says, please stop sinning. Please, और you इसके stop sin first. हमारे स्वामी की कहना यह है कि पाप करना रोकें। The second look is a sin. First और look, it will tempt you, stop sinning. I tell you, this is the first step of overcoming life. जो पहले बात है वो ठीक है, आप दूसरी नजर मतलब आप आंखों से देखकर उसको पाप ना करें। The Sirach, the rejected Bible, Sirach, the Sirach wise man like Solomon, he told like this, if you have lust in your eyes, turn your face where he tempted. He told like this. Sirach. सिराक जो सुलेमान के टाइम में थे, वो ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी आंखें परीक्षा में डाल रहे तो दूसरी तरफ मुड़ जाओ। I'm not talking about the Holy Spirit now. I'm not talking about the baptism now. I'm talking about stop sinning. Please remember, this is the first और step of Christian life. Stop sinning. और ये मसीह जीवन का पहला कदम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाप पर विजय पाने की या पवित्र आत्मा की बात, बट हम प्रभु के द्वारा पहले कदम ये है, Why? पाप करना रोकें। Why? Because God already anointed through the Adam. God already through Jesus, we already blessed. What is our blessing? No, we will be able to stop sinning. और हम यीशु मसीह में हम आशीषित हैं, वो क्या है? हम पाप करने का रोकने का है। It is exactly removing the ice. Remember, stop sinning, removing the ice, breaking the hand, stop sinning. Understand? और ये ऐसा है कि आंखों के निकालने की तरह उन पापों को हम रोक रहे हैं। So, हाथ को रोकना मतलब हाथ को तोड़ना मतलब हाथ से पाप करने रोकना। I tell you, after 9 o'clock, everybody evil, right? 9 बजे के बाद, सॉरी, After 9 o'clock, after night 9 o'clock, everybody evil. evil, Evil, bad people. Bad ओके people. ओके, Everybody. That's it. मतलब 9 बजे के बाद हम लोग गंदे लोग हो जाते हैं। See, for example, a person is using that cigarette, the father is coming, immediately cigarette goes down, he stops sinning, right? Right? और सिगरेट पीने वाले पादरी को देखते ही नीचे फेंक देता है। Huh? Nobody doing adultery on the road 10 o'clock morning, 12 o'clock, right? Why? Because they know shy is there. The stop sinning is there in the man. और दिन दिहाड़े ऐसे विचार तो नहीं करता है, रात को 10 बजे के बाद वो 5 बजे तक इसी टाइम करते हैं ना। Some honorable people is there. We are maintain our dignity, right? और आदरणीय लोग हैं, उनके सामने हम अपनी इज्जत को बचा के रखते हैं ना। Even so much of pressure inside, we control, right? और अंदर बहुत चाहत है और दबाव है, फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं ना। Wife is sitting near with us. We are not watching something wrong in the TV, right? अगर पत्नी साथ बैठे हुए तो टीवी में ऐसा गंदी चीज हम नहीं देखते हैं ना।
husband is standing where us, we are not at all following some bad things, right? और अगर पति के साथ खड़े हैं तो हम गंदी चीजों में नहीं गिरते हैं ना। Just door is not, pastor is standing outside, huh? Then everything is stopped, right? How it is possible, my dear brothers and sisters? और ये कैसे हो सकता है कि पादरी दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम सारे गंदी बातों को बंद कर देते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, I know संभव हो Isha जाता है? Yoga, I know Isha Yoga people, I know that the Brahma Jamajam people, these all people, they stop their sins. I tell you. और ये जो ब्रह्मकुमारी से जो संस्था के लोग जो हैं, सारे अपने गलत काम को रोक रखे हैं। We are going to study whole day 4 sections how to be, sin shall not master over us. The first thing is stop sinning. और हम 4 सेशन में आज पूरे दिन हम पढ़ने जा रहे हैं, पाप को कैसे रोकें। पहले कदम में हम ये करेंगे, पाप को हम रोकना है करके। What Jesus is telling, if you Yes. falling on this sin, you will be in the hell. Jesus is telling like this, right? इस पापों में गिरेंगे, आप नरक में जाके अपने जीवन को बिताएंगे। See, சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம். சரீரம் முழுவதும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம். 2 times is written, right? और 2 बार ऐसे लिखा है, पूरे शरीर नरक के आग में डालने के बदले one member to be destroyed, that is good. That means stop sinning, right? एक अंग को मतलब नुकसान करना बुरी बात नहीं। So I tell you, in Romans chapter 6 also same thing is written. Romans chapter 6:1-6:2. और रोमियो 6 के 2 में भी यही लिखा है। Romans chapter 6 verse 2 says like this. Sorry, verse 1 says like this. 6 की ए में 1 में इसी तरह लिखा है, रोमियो 6 का 1। Read carefully 6:1. तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? जी। Are we remain in sin? No. It is written in the Hindi, brother. Same. It is written. कूड़ादे हम कर नहीं सकते ना। If you want to read 6:14, start with 6:1. 6:1 says stop. और 6 की 14 अगर पढ़ना है तो आप 6 की 1 में शुरू करना है, क्योंकि वहां पे रोको, पाप को रोको। I tell you, brother, already God blessed this grace. Under the grace it is there. We will be able to stop first. और मैं आपको कहता हूँ भाई, हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आशीष किया है। See, verse 15 also same thing. 6:15. और 15 में भी यही लिखा है। So இதனால என்ன சொல்லுவோம்? நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பற்றாமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடினால் பாவம் செய்யலாமா? கூடாதே. तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन रहें, वरन अनुग्रह के अधीन हैं, खताबी नहीं। It is written, brother, exactly. पावम செய்யலாமா? கூடாதே. क्या पाप कर सकते हैं? जी है ना। See, 1 John chapter 4. ये पहले यूहन्ना 4. One who born of God, he will not practice sin. और पहले ही को ना। One who practicing sin, one who born of God, he is not practicing sin. देवनाल प्रंदवन पावम செய்யான். जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा वो पाप नहीं करेगा। See, I tell you, we are talking about stop sinning, right? हम बात कर रहे हैं पाप करने के रोकने के बारे में। Do you know that it is in it is in 1 John 3. 1 John 3:9. जी, चले read. Yeah, please. पहले यूहन्ना 3:9 में ऐसे लिखा है। Okay. पढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 1 John 3:9, 2 times written one word. Read carefully. One who born of God is not practicing sin, right?
और ये पहले यूहन्ना 3:9 में 2 बार ये लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में जन्मा वो पाप नहीं करेगा। Why? Because there is a seed of against the sin is inside, right? It is written, right? और Seed is जो inside. पाप करने के विरोध में हमें ताकत देने के लिए बीज हमारे अंदर बना So हुआ one है। who are really born of God, there is a seed is inside. He understands who he is under the grace, under the love. He is not practicing sin. He stops sinning, right? It is written. Huh? और जो ये यीशु मसीह में जो जन्मा है उनके अंदर वो बीज है, इसलिए वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि ये लिखा है। It is written. Why he is not sinning? He is born of God. Devanal Prandarikra Badina is born of God. That is the reason he is not sinning. It is written, right? और ये परमेश्वर में जन्मा है, परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, इसलिए वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीज उनके अंदर है। See, I don't know how I explain. I want to show only one thing happened in Tamil Nadu. I tell you. और आप कैसे समझाए भाई, मुझे नहीं पता, पर तमिलनाडु में एक बात हुई, मैं बता रहा हूँ। See, there was that Jallikattu. You know the name Jallikattu, right? और जल्लीकट्टू जो बैलों को पकड़ने का है, The government was rejected Jallikattu. That is the reason all the young boys and girls gather in Marina Beach 2 nights. और वो हमारी सरकार जो है, और जो जल्लीकट्टू जो बैल को पकड़ने का है, वो खेल है, उसको हमारी सरकार ने रोक लगा दिया। Young, सारे उसके विरोध में और बेटे बेटियां, मतलब लड़के लड़कियां बहुत सारे इकट्ठे हुए मरीना बीच में। young blood, boys and और girls gather. 1 lakh people, young blood gather in the Marina Beach 2 nights. They all staying there. ये जवान लोग, जो जवान खून, 1 लाख से ज्यादा लोग जो मरीना बीच में इकट्ठा हुए हैं। They are not Christians. They are literally a genuine worldly people, fully worldly people, right? They gather वो मसीह because लोग of an हैं, auction. और वो लोग विश्वासी नहीं है, अविश्वासी हैं, इकट्ठा हुए इसके ऊपर मतलब विरोध करने के लिए। The 2 nights, 2 रात को there is no liquor bottle find in the seashore. Number 1. और शराब की बोतल उस जो मरीना बीच, जो समुद्री किनारे में नहीं पाया गया। There is no pot of cigarette find in that Marina Beach. और उस मरीना जो बीच, जो समुद्री किनारे है, वहां पे एक सिगरेट की टुकड़ा नहीं मिली। There is no fight and breaking the head. It is not in the Marina Beach. और वहां पे सर फोड़ने का काम वहां पे मरीना बीच में नहीं देखा गया। That all the girls reporting to the TV 2 nights, this all treat us their own sisters. Huh? Own sisters. They never touch. They are not treating badly. All the girls. और ये 2 रात में सारे लड़कियों को वहां पे अपने बहन की तरह लड़के मतलब संभाल रहे थे, उनके साथ बिहेव कर रहे थे। I'm not talking about a believers conference. I'm talking about the worldly people gathering for Jallikattu. और मैं विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो दुनियादारी लोग, जो बैल पकड़ने खेल चलता है, उसके लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे। My concern is stop sinning. Understand? मेरे एक ध्यान है, पाप को रोकें, पाप करना रोकें। How this young blood stop sinning? Girls are there. Gathering is there. That means God already blessed the man. Stop sinning, right? First of all, stop sinning, right? और ये जवान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आशीष, इंसान को आशीष किया है पाप करने से रोकने के लिए। They are not born of God. I'm talking about born of God means they're more power, right? और वो लोग परमेश्वर से नहीं जन्मे, हम परमेश्वर जन्मे तो हम ज्यादा ताकत रखते हैं। It is shaking in my heart. I was hearing. Oh, you know one thing, that Maud doesn't know why these people are this much control, right? और ये लोग मतलब जो बैल जो है, बैल नहीं जानता ये लोग अपने पाप को क्यों रोक रखा है करके। See, even the Maud doesn't know these people are controlling, right? और ये तो बैल जो है वो नहीं जानता है ये लोग अपने पाप को क्यों रोक रखा है। Stop sinning is possible. ये पाप को रोकना संभव है। When we met these people in the judgment day, that all 1 lakh young people spit in our face as a Christian. They will spit in our face. Why? Because you people not having this grace to control your sin, right?
Surely, और right? ये 1 लाख लोग जो है हमारे ऊपर थूक सकते हैं, क्योंकि तुम लोग ये मतलब पाप को रोक नहीं सका, हम लोग ने रोका है। I don't know how I explain it, but I tell you, 6:14 starts with stop sinning, right? ये कैसे आप लोग भाई ने समझाया हमें नहीं पता, बट ये जो 6 की 14 जो है, पाप को रोको, पाप करने को रोको। One who born of God, not practicing sin. और जो परमेश्वर जन में वो पाप नहीं करेगा। We will close it here. Stop sin is a blessing of new covenant believers, one who really born of God. Amen. पाप करने को रोकना एक नया जन्म की नए जन्म भाई बे नए वाचा की जो विश्वासी है उनकी एक आशीष है। So I want to close it here. Brother John Pastor will continue 15 minutes the same topic. 15 मिनट्स राइट। 15 minutes. Continue the message, and then we close the first section 10:45, 11:45. प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को आशीष है। फिर से मैं आपके सामने प्रभु के वचनों को लाऊंगा, कुछ चीजों का बात करेंगे। पाप करने के रोकने के बारे में हम थोड़ा अभी पढ़ा, और आगे के विषय जो है कैसे हम रोक सकते हैं उसका हम थोड़ा अनुग्रह की बात हम कर सकते हैं, है ना। और कुछ विषय को हम पा सकते हैं, किसको अनुग्रह मिलेगा, है ना। अनुग्रह के बिना हम पाप को रोक नहीं सकते। ये सच में मेरे आपके दम की बात नहीं है। और सच में ये एक आशीष प्रभु ने हमें दिया है कि उन्होंने अनुग्रह दिया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो फिर भी आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई ये सच है, हम चाहते हैं यार कि हम पाप करना छोड़ें, क्योंकि पाप जो है आपके मेरे दिमाग पर असर करता है, आपके मेरे दिमाग पर असर करता है, क्योंकि हमें ये मतलब मंदबुद्धि इंसान जैसे कर देता है, हमें उसको गुलाम बना देता है। सच है ना। कि सच में उन बातों को हम छोड़ना अच्छा लगता है। मैं भी प्रभु की सेवा में हूँ, कई लोगों की बातों सुनता हूँ, मैं खुद भी संघर्ष करता हूँ, क्योंकि कोई भी इस परीक्षा से बाहर नहीं है, कोई भी इस परीक्षा से बाहर नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु जयवंत बनाने के लिए, क्योंकि जयवंत कैसे बनेंगे, जयवंत मतलब विक्ट्री कैसे मिलेगा, जीत कैसे पाएंगे, जीतने वाले कैसे बनेंगे, जब हमारे दुश्मन नहीं तो हम कैसे किससे लड़ेंगे, ठीक है। इसलिए लहू जो मांस लहू है, दुनिया है, शैतान है, इन बातों से हमें लड़ना है। लड़ना है तो हमें क्या चाहिए, अनुग्रह चाहिए, है ना, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। तो इसलिए हम उन बातों को थोड़ा पढ़ेंगे, कौन अनुग्रह पाता, क्योंकि जो अनुग्रह के अधीन है वो पाप नहीं करेगा, है ना। सच है। और इसलिए मैं आपको एक कुछ चीजों को मैं दिखाऊंगा, जिसे याकूब की पत्री में वो लिखा है, जो परमेश्वर के अधीन है, जो परमेश्वर के भाई मानता है या परमेश्वर के अधीन है, वो लोग अनुग्रह पाते हैं। इसको हम पतरस में भी 5वें अध्याय में 5:4, 5:6, 5:5 में हम पढ़ सकते हैं। जो उनके अधीन है, परमेश्वर के अधीन है, वो पाप मतलब अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह पाए भी लोग क्या है, पाप उन पर राज नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम जरूर इन बातों को थोड़ा विस्तार से 10 मिनट तक हम पढ़ेंगे। कौन अनुग्रह पा सकता है, अधीन दीन लोग, मतलब नम्र लोग, ठीक है, नम्र लोग। तो आप उन बातों को थोड़ा हम देखेंगे। मुझे अनुग्रह चाहिए, क्योंकि मैं भी उस संघर्ष में हूँ, मेरे पास भी मांस लहू है, क्योंकि हमारे पहला दुश्मन कौन है, हमारे मांस लहू है। तो इसको ऊपर हम जीतना है, जीतना है तो पहले परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। क्योंकि वो पौलुस अच्छा एक शब्द को हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ब्रदर अच्छा कह रहे थे कि वो यीशु मसीह के अंदर हम आशीषित लोग है। किस बातों में आशीषित लोग है, क्योंकि ये मूसा ने लाया व्यवस्था को, मूसा ने लाया कानून को, और यीशु मसीह ने लाया अनुग्रह को और सच्चाई को, ठीक है। और इसलिए यीशु मसीह में अगर आप रहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही प्रभु कर रखे। विश्वास की थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। आज विश्वास की बात तो आप थोड़ा सोचेंगे तो मैं विश्वास की बातों का हमेशा मैं सोचता हूँ, मेरे पति पत्नी की रिलेशनशिप में लेके आता हूँ विश्वास की बातों को। यीशु मेरे बीच की जो विश्वास की बातें हैं, वो पति पत्नी की रिलेशनशिप में समझने के लिए कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाएं या मैं भी समझा दूं आपको, है ना। मान लीजिए मेरे वाइफ के पास और 4-5 लाख रुपया है, और मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास भी 4-5 लाख रुपया है, मैंने लगा दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मुझे एक नए मिशन लाने के बिना वो बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक में लोन के लिए जाएंगे 15% है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे वाइफ से पैसा है, मांग लेते हैं। तो वो एक दिन ऐसे बोल रही थी कि भाई मैं मुझे बहुत अच्छा पति मिला,
है ना। और ज्यादातर पत्नी बोलते नहीं है, चलो मेरी वाइफ बोलती है। और बोला कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए, ये सारे कल्पना है, ठीक है। और वो बोल रहे मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, प्यार तो करते हो मुझे मालूम है, मुझे वो 4-5 लाख पैसे दे दो यार, लगा देंगे, पर धीरे धीरे मैं आपको वापस भी कर देता हूँ, आपकी सेविंग आपके पास रहे। तो उन्होंने बोला देखो प्यार करती हूँ, बट पैसे की बात तो मेरे से नहीं करना। तो ये कौन सी प्यार है ना। आज ही हम लोग विश्वास की बात करते, वही वचन को याद करते हैं, यह देखो द्वार पर यीशु मसीह खड़ा होकर खटखटा रहा है, ठीक है ना। उस पर वो जो दरवाजा खोलेंगे तो अंदर आ जाएंगे, हम इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। मैं जब भी दरवाजा खोलते तो यीशु मसीह अंदर आ जाते हैं, वो बेचारा है वो दरवाजे पे खड़े होकर हमेशा खटखटाते रहता है। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, बहुत डेंजरस बातें हैं, क्योंकि दरवाजा खोलने के पहले वो हमसे पूछ रहे हैं मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ। वो हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है। हम कैसे विश्वास करते हैं यीशु को, प्रभु, प्रभु मतलब लॉर्ड, इसलिए हम बोलते हैं लैंड लॉर्ड, है ना। लैंड लॉर्ड बोलते हैं मतलब वो मालिक है सभी का। मेरे जीवन में सभी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह मालिक है, आपके जीवन में इसी तरह विश्वास करते हैं तो वो सब कुछ हमारे अंदर है, ठीक है ना। मुझे सारे वो कंट्रोल करेंगे। यीशु मसीह में जो आशीष की बात हुई है ना, तो यीशु मसीह के ऊपर आशीष तभी आएगा जब हम उनको प्रभु करके ग्रहण करते हैं। मतलब मेरे जीवन के हर हिस्से में, मेरे उठना बैठना चलना फिरना सब यीशु मसीह में प्रभु करके विश्वास करते हैं। तो इसलिए इसी बातों को थोड़ा ध्यान दे, क्या हम सच में विश्वास करते हैं, है ना। काफी लोग विश्वास को ऐसे भी समझ लेते हैं कि मतलब जैसे मैं मोदी को जानता हूँ, मोदी को जानता हूँ, मोदी मुझे नहीं जानते हैं। मोदी इसी तरह बंदा है, मैं उन पर भरोसा करता हूँ, इसी तरह गंदा काम करेगा, ठीक है। और नहीं, राजनीति नहीं चाहिए, फिर भी बोलता हूँ, मतलब एक व्यक्ति है, इसको पूरा मैं जानता हूँ, ये चीज गलत काम करेगा, तो इसका मतलब क्या है, उनके मेरा कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल नहीं है, मुझे जानते तक नहीं है। बट एक चीज देखिएगा, प्रभु और मेरे बीच की रिश्ता है, तब यीशु मसीह में वो बात, यीशु की बात आएगा। जो यीशु मसीह में जो आशीषित लोग हैं हम होंगे। दुनिया जैसे दुनियादारी लोग कुछ बातों को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो मैं भी अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकता हूँ मेरे परमेश्वर की अनुग्रह से। सो अनुग्रह किसको मिलता है, विश्वास करने वालों को। विश्वास करने कैसे करते हैं, वो मालिक करके, मुझे वो राज करने वाला प्रभु है करके। तो मैं विश्वास करता हूँ तो वो मेरे मेरे ऊपर प्रभु है, तो वो मुझे नियंत्रित करता है, मेरे पाप नहीं है, वो मेरे ऊपर प्रभुता करता है, मेरे पाप नहीं है, मेरे जो गंदी सोच है, मेरे गलत काम है, जो मैं बार बार करता हूँ, मेरे ऊपर राज नहीं करेगा, है ना। राज नहीं करेगा, फिर से कह रहा हूँ, राज नहीं करेगा, प्रभुता नहीं करेगा, ठीक है। हम फिर सकते हैं बट बार बार करने वाले नहीं होंगे, है ना। और हम उसी को लगातार करने वाले करके भी लोग आजकल मेरे से बोलते हैं, आपसे भी बोलते होंगे, ये मेरे कमजोरी है, मेरे मजबूरी है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसी तरह पर वो देखिए, अगर उनसे जीवन में ध्यान देगा ध्यान देना, एक चीज को आप देख सकते हैं क्या है ना, वो लोग उसी तरह इंग्रेडिएंट्स को अंदर लेते ही होंगे, कहीं ना कहीं जाके उसको नहीं रोकेंगे, वो रोकने लायक चीज भी होती है। वो लोग उन्हीं से दोस्ती में जाएंगे, उसी तरह काम में जाएंगे, फिर बोलते हैं मेरे कमजोरी है। तो इसलिए हम रोकने के लिए हम खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एक मजाक में बोलते हैं ना, मैंने घर के अंदर 10-15 बिल्ली को आने दे दिया, ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, सारे बिल्ली आ गया। तो दरवाजा खोलते वक्त क्या वो सारे शहर बन के निकलेगा, नहीं, गंदी चीजों को अंदर लाएंगे तो गंदी ही बनकर बाहर निकलेगा, सारे गंदे काम करेंगे। तो इसलिए हम पहले चीज जो है हम खुद को रोकना है, तो रोक सकते हैं कैसे, प्रभु यीशु मसीह में हमें वो बीज है, ठीक है ना। चलिए वापस आए मुद्दे पर। कौन अनुग्रह पाता है ना, उसको हम थोड़ा ध्यान, दीन लोग कौन है, जो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाता है ना। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। नम्र हम कैसे बना सकते हैं, ये परमेश्वर नहीं बनाएगा आपको, है ना, आपको मुझे प्रभु यीशु नम्र नहीं बनाएगा, सीधी बात है, ठीक है। और ये जो लूका 18 में पढ़ेंगे, वहां पे 14वें वचन में ये लिखा, जो अपने आप को नम्र बनाता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, वो बड़ा किया जाएगा। बड़ा कौन है, परमेश्वर मेरे अंदर रहा है, ठीक है, इससे बढ़कर कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो नम्र बनना चाहता है, ठीक है, मैं आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नम्र बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ हम्बल पर्सन, देन यू हैव टू सी जीसस क्राइस्ट। Mute and speak. It's unmute. Please unmute. So please unmute. Please unmute. Yeah.
So mute. Please unmute. No, your voice is mute. Yeah. Now okay. Now okay. Okay. Continue, please. Sorry. Continue. ओके जब हम बड़े चीज को देखते हैं हम लोग समझते हैं हम छोटे हैं करके, तो इसलिए मैं परमेश्वर को देखना है। यीशु को नहीं देखें तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आप नम्र बन ही नहीं सकते, नम्र नहीं बने, नम्रता नहीं है। इफ देयर इज नो हम्बलनेस देयर इज नो ग्रेस। तो ये सीधी बात है, ग्रेस नहीं है तो यू कैन नॉट विन द सिन, मतलब आप पाप आप पर राज करेगा ही है। तो नम्रता एक ही रास्ता है बाइबल में, एक जो है अनुग्रह पाने का है। तो इसलिए आपको अनुग्रह चाहिए, नम्र नम्र कैसे बने, यीशु को देखना है। तो यीशु को देखते देखते पौलुस की कहना आप देखिएगा, पहले बोल रहा है मैं छोटा प्रेरित हूँ, फिर कह रहा है पापियों में नंबर 1 हूँ, क्योंकि जो शुरुआत में बोल रहा है छोटा प्रेरित, बाद में बोल रहा है बड़ा पापी। देखिए कितने बढ़ोतरी हुआ उनकी नम्रता में। तो इसलिए यीशु को कहाँ देख सकते हैं, इस बाइबल में है ना। एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ यीशु को देखने का। आप एलिएजर के साथ रेबेका चल पड़ी, जब लड़की देखने के लिए एलिएजर गया अब्राहम की कहानी में, एलिएजर रेबेका को लेकर रेगिस्तान की यात्रा में और अपने मालिक के लिए वो लेके जा रहा, इसहाक के लिए लड़की को लेके जा रहा। जाते वक्त देखना कि वो अपने होने वाले पति इसहाक के बारे में बार बार पूछ रही है, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पति कैसे होंगे, उनके बाल कैसे होगा, उनके बोलचाल कैसे होगा, उनके चाल चलन कैसी है, वो गुस्सा करने वाले या प्यार करने वाले, सारी चीजों पूछते 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 जा रही है। एलिएजर बताते बताते जा रहे थे, ठीक है। और मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब वो इसहाक को देख लिया, एकदम घूंघट लगा दी रेबेका। ये कैसे लगा दी? एलिएजर ने बोला भाई तेरा पति वही है, वो करके बोला नहीं। ये देखी, एलिएजर को देखी, वो शर्माई और ये एकदम घूंघट ओढ़कर नीचे उतर गई, मतलब खानर करने लगी और उसके बाद पति पत्नी हो गई। तो ये चीज याद रखिएगा, एलिएजर पवित्र आत्मा की तरह है, ठीक है। वचन आज हमारे हाथ में है, हर रोज अगर हम वचन पढ़े, हर रोज वचन पढ़े है ना, एक रिवाज के तौर पे नहीं, इट इज नॉट रिचुअल, but we have to read the word of God with the help of Holy Spirit. We can see that Jesus Christ, we can see apparently, openly, we can see Jesus Christ. Then we will become humble one, then otherwise there is no chance at all. मैं यकीन से कह सकता हूँ यीशु को जो नहीं देखा, if anyone did not see Jesus Christ, he cannot be a humble person. एक आर्टिफिशियल हम्बलनेस आएगा, एक 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 दिखावे वाले एक हम्बलनेस आएगा, तो वो उसके लिए अनुग्रह नहीं। वो लगेगा जय मसीह की कैसे हैं, शांत बोलेगा, सब बोलेगा, बट यू नो एक टाइम आएगा और मैंने सीजन में फल देंगे ना, सीजन विल कम, द फ्रूट विल बी देयर। सीजन आएगा, वो उसको फट जाएगा, उसको गुस्सा एकदम फट जाएगा, और है ना, क्योंकि इतने समय से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है ना, वो तो मनुष्यों की ताकत से ना कंट्रोल किया है ना। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु को जो नहीं देखा, जो यीशु को नहीं देखा, didn't see, you cannot be a humble person. That is why take the help of Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा की मदद ले लीजिए और इस वचन में हर रोज उनके साथ बैठना, अकेला बैठना, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपको दुल्हन में प्यार से बोलते हैं, है ना, और वो उनकी आवाज आप सुन सकते हैं। ये बाइबल में यीशु मसीह की देखते हैं ना, रोज आप हम्बल होते जाएंगे, जैसे यीशु हम्बल हुए, वो ईश्वर इंसान बने, है ना, परमेश्वर जो इंसान बने, इंसान से वो गुलाम बने, गुलाम से वो कहाँ चले गए, क्रिमिनल बन के मेरे लिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ाया। तो और मैं क्यों ना हूँ, इसलिए यीशु को देखिए ना, यीशु को देखिए, यू विल बी बिकम humble person, then the grace will be there, then the sin will not overcome you. May God bless you. Thank you. Over to you. Yeah, you will lead and close the prayer, and we'll have a 15 minutes break. 12 o'clock we will join. Yeah, sure. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच्चे नम्र व्यक्ति हमें बनाइए मेरे पिता, ताकि हम अनुग्रह पाए, जो अनुग्रह पाए उन पर पाप राज नहीं करेगा। हम सभी को चाहिए प्रभु जी, हमें कोई बड़ा छोटा नहीं मेरे पिता, आपके अनुग्रह के बिना, क्योंकि आप खुद अनुग्रह में बढ़ते गए, लोक में हम पढ़ रहे हैं मेरे पिता। इसलिए प्रभु आज हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है, हमें नम्र बनाइए, दीन बनाइए प्रभु जी, दया करिए मेरे पिता परमेश्वर।
जो कोई नम्र बनाता है वो राजा अनुग्रह पाता है, जो अनुग्रह पाता है वो राजा आप राज नहीं कर पाएगी उस पर। दया कर प्रभु, मेरे सुनाने वाले में भी प्रभु आपके अनुग्रह से बढ़ जाएं, ताकि एक एक बातों जो हम हार रहे हैं, जिस पापों में हार रहे हैं उसमें विजय पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन पिता। God bless you. Yeah, we'll meet sharply, and the meeting will be closed 1 o'clock. We will have a singing section and one word of God sharing. Shall we close it?